दुकानदार अपना गार्ड भी रखे तो पुलिस किस वास्ते माशरे च साडे ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ भर्ती ज्यादा होनी चाहिए ਕਿੰਜ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਟ ਲਾ ਦੇਗੀ ਯਾਰ ਕੋ 100 ਬੋਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਦਰ ਸਈਦ ਯਹਾਂ ਕੱਟ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਆਈ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ माशरे में सर डाकू क्यों ज्यादा सिक्योर है मुआशरा सुन तो ले मुआशरा इसलिए सिक्योर है कि तुसी उन्हां दी ज़मानत करान टुर जाते हो बदमाशों का सीआई से ताल्लुक नहीं था लिस्टें आपने बनाई थी बदमाशों की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं मुझे पता बदमाश कौन है तो वो क्यों और बदमाशों को मेरा पता है मैं क्या हूं बंदा सिक्योर नहीं है और डर दी वजह तो अपना केस वापस ले आ रहा है वो किस तरह सिक्योर होएगा 6 लीटां दे दी जाके डीआई साहब ऑपरेशन को तुसी सवाल पूछो पिछली गवर्नमेंट ने तो बड़ी तारीफ भी की थी राजा बशारत साहब हर बार असेंबली चेक करते थे बंदे भी दे जाते ना को 10-20 हज़ार रुपए मैं एसपी सदर था तो उन दिनों में ज्वेलरी शॉप से वारदातें हो रही थी मेरी एरिया में 200 के करीब ज्वेलरी शॉप्स थी तो मैंने कहा कि जी सबका सर्वे करें उस वक्त शॉप साइड सिक्योरिटी एक्ट होता था कि 1 मिलियन से ऊपर होगा तो आप एक गार्ड रखेंगे तो इस तरह का सारा तो मैंने कहा जी इनसे ले जिसके पास जो है जिस कैटेगरी में आता उतने गार्ड रखे उतने कैमरे लगाए आप यकीन करेंगे 200 दुकानदार लिख के दे देता कि साढ़े को सारा ही आर्टिफिशियल सोना होता है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏ ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਹੈ ਸਰ कि आप पुलिस कितनी है लाहौर में सर अब ये तो एक मिनट सबर ते करना यार और पुलिस ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ कितनी भर्ती ज्यादा होनी चाहिए नहीं तो भर्ती करके ਦਿਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ तो रोज देने हैं आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो निकालें कि हमारी नफरी कितनी होनी चाहिए आप एक काम करें ना आप इसके बाद कैमरा उठाएं आप चले जाएं सेक्रेटरी फाइनेंस के पास कि सारे इन्होंने इन्नियां चिट्ठियां लिखियां ने सानू बंदे रिक्रूट करन दिओ साडी इन्नी डेफिशिएंसी है सर क्यों नहीं इजाजत देंदे सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਠੀਕ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰਚੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਦਰ ਸਈਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ क्यों नहीं मिल रहे क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट पूछो ना वो भाई लोग फाइनेंशियल वजह कोई दस रहे होंगे बस आप देखिए ना आपके सामने है मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन देखें सर हर महकमे में तो हो जाती है भर्ती सर फिर सानू तुसी करा दिओ चलो इंज कर रहे हैं ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੰਡ ਹੀ ਬੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं आईजी साहब की सर ऐसी बड़ी तारीफ हुई है इस चीज से सुनो ना बदर सईद ये सवाल इस बात से लिंक्ड नहीं है कि भर्ती का और फंड तकसीम करने का ताल्लुक क्या है मतलब फंड तो है इसका मतलब ओ भाई उसके मध्य में और भी आ सकता है भाई बात तो सुने ना देखें आप सीपीओ में रहे हुए हैं फंड अगर वेलफेयर फंड को आईजी साहब बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ओदी जगह एक वैकेंसी क्रिएट की जा सकती है लेकिन सर दैट इज अ सेपरेट थिंग दिस इज अ सेपरेट थिंग ठीक है ना लेट्स नॉट मिक्स दोस टू थिंग्स ना दोनों का कोई आपस में मिक्स बनता नहीं है सर मैं मिक्स नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि देखें आपने मुल्क की मैशियत की बात की तो मैंने कहा कि फंड आ भी रहे हैं वेलफेयर की मद में आ रही हैं ठीक है वो वेलफेयर पे ही लगने चाहिए वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं आ रहे भाई वेलफेयर की मद च ना मिक्स करना चीज़ां नूं सर वध गए ने पेट्रोल पंप तो इनकम ज्यादा शुरू हो गई है पुलिस दी स्कूलों तो पैसे आने शुरू हो गए ने स्कूल हाँ वेलफेयर च लग रहा है तो वेलफेयर ਦੇ ਪੈਸੇ वेलफेयर ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਈਓ ਨਹੀਂ वेलफेयर ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਟ ਲਾ ਦਈਏ ਯਾਰ ਕੋ 100 ਬੋਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਸਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੋ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸ भाई बदर सईद यहाँ कट करें
मैं आईजी ऑफिस से मंगवा के केस आपको देता हूँ, साथ देता हूँ, कितनी मीटिंगों में आईजी साहब ने कहा है कट करें यहाँ पे, मंगवा देता हूँ, तेरी तसल्ली सर मैंने थोड़ी रखने हैं। फिर तेरी तसल्ली करा देना ना, गोली तो मारो रहा यार, मैं तेनों की करा अच्छा ठीक है सर। अच्छा किस तरह सर बंदे किस तरह भर्ती हो सकते हैं, ज्यादा की प्रोसेस है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ दस। सर देखिए ना, बात ये है कि आप जब भी वैकेंसियाँ आती हैं वो इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। आप पूरा केस बना के लेके जाएंगे, वो फाइनेंस, होम फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट, वहाँ से जाके अप्रूवल होगा, क्योंकि एक वैकेंसी के पीछे खाली वो एक सिपाही भर्ती नहीं हो रहा, तो उसकी पूरी पे स्ट्रक्चर, पेंशन, सारा कुछ, पूरी कहानी पूरी चलनी है, ठीक है ना। फिर उसकी ट्रेनिंग है एंड एवरीथिंग है, इट्स अच्छा जितनी प्रमोशंस हुई हैं इस टेनोर में, तो पीछे सीटें तो खाली हुई होंगी, अगर मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल ऊपर आ गए, ये डीएसपी तक है ना, उसमें रिक्रूटमेंट भी होनी है, ठीक है। उस रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं है कि आज बटन दबाया तो कल 200 बंदा रिक्रूट हो जाएगा या 1000 रिक्रूट हो जाएगा, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। उसमें पहले अप्रूवल का प्रोसेस मुकम्मल होगा, अप्रूवल के बाद फिर उसका ऐड आएगा, फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, फिर रिक्रूटमेंट होगी, फिर रिक्रूटमेंट के बाद वो ट्रेनिंग करेंगे, देन दे विल कम इन द फील्ड। तो इट विल टेक मोर देन 2 years, इट्स नॉट जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन, पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर एक और चीज़ शुरू हुई थी, अब मुझे क्योंकि आइडिया नहीं, वो आपकी डोमेन में आई थी नहीं, लाहौर के बदमाशों की एक फहरिस्त बनी थी और उसके बाद उनकी थाने में हाजिरी और उनके वो सारा प्रोसेस शुरू हुआ था। थाना ही नहीं है ना, तो ये थानेदार से पूछे। तो इसका बदमाशों का सीआईए से ताल्लुक नहीं था? नहीं, थानों का मेरे से ताल्लुक नहीं। लिस्टें आपने बनाई थी बदमाशों की सीआईए ने? नो आई डोंट नीड टू, मैं क्यों बनाऊं? आपके पास लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है बदमाश कौन है, तो वो क्यों बाहर है? बदमाशों को मेरा पता है मैं क्या हूँ, तो वो बाहर क्यों है? कौन बदमाश? पर्चे तो बड़े बड़े बदमाशों पे बहुत ज्यादा पर्चे हैं। हाँ, वो इस तो उसकी बात वजह ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਾ जी ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 200 ਪਰਚਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? सर मैं तो पूछ रहा ना कि ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾਈਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਲਤਫਹਿਮੀ की बुनियाद पे पर्चा दर्ज हो गया, तो कैप्टन लियाकत तक कसूर तो नहीं ना लॉर्डशिप, इस तरह बच रहे ने सर। ये ते ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। अच्छा तो फिर दूसरी दसो कि मदई मतलब एक यह भी चीज़ आती है कि पुलिस अगर कर रही है उस पर बदमाश को पकड़ती है तो मदई की सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। वो ज़्यादातर केसेस में यही सुनने में आया कि चीज़ ते तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ सर मैं देना है, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ सोसाइटी ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर मैं देना तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मैं हूं, मेरे को ਮੈਨੂੰ को बंदा 10 लाख दे दियो यार, मैं हर बंदे नाल एक बंदा ला देना, ਮੈਨੂੰ तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन देखो ना, एक बंदा पर्चा करांदा है, तुसी ओदे कहंदी मुलजम भी फड़ लिया है, ठीक है, लेकिन उस बंदा सिक्योर नहीं है और डर दी वजह तो अपना केस वापस ले आ रहा है। वो किस तरह सिक्योर होएगा? 6 लीटां दे दईए, वो किस तरह सिक्योर होएगा? 6 लीटां दे दईए ਉਹਨੂੰ सिक्योर हो जाएगा। नहीं किस तरह होएगा? वही 6-7 लीटां दे दईए ना ਉਹਨੂੰ तो सिक्योर हो जाएगा। यानी कि ताड़ी जिम्मेदारी नहीं ਕਿਹੜੀ पुलिस दी? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। जाके डीआई साहब ऑपरेशन को ਤੁਸੀਂ सवाल पूछना है क्या मनो मान ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है कि नहीं। अच्छा हाँ, देखे ना, आपने माशाल्लाह स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करने आए हैं ना, सीआईए की बात करें। तो सर इशू तो देखे ना, आप बेसिकली तो आप पुलिस का शोबा, आपने यहाँ से जाना है, आपने वहां जाऊंगा, वहां की बात करनी है, आप लग जाएंगे। पहले आप सीटीओ भी रहे हैं, बाकी भी रहे हैं, आप डीपीओ भी रहे हैं, आप डीआईजी बल्तिस्तान भी रहे हैं। जब मैं वहां तो जब ये एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा हैं, सर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है ना आप, जब मैं वहां जाऊंगा ना फिर आप कहेंगे सीआईए एसपी सीआईए से पूछें। नो एसपी सीआईए का काम होगा तो पूछूंगा, अदरवाइज मैं मदई आता है, कहता है जी मेरा इसके साथ मामला ही सॉल्व हो गया, हमने छोड़ दिया। मदई क्यों मजबूर होता है ये कहने पे? इस इशू को भी तो लेंदा जे मदई चोरां कोलों भी, साडे कोलों भी ले लैंदा रिकवरी दी मद च, ते चोरां कोलों माफी देण दे भी ले लैंदा। नहीं सर, डर खौफ भी तो हो सकता है। काफी है ना, डाकुओं कोलों भी पैसे माफी देण नहीं हो सकता है कि वो डर खौफ है। ते जे गल हो ही सकदा है, ते फिर जो तुसी कह रहे हो सकदा है, जो मैं कह रहा हूं नहीं हो सकदा। यानी हर मदई पैसे ले रहे हैं, तुसी साफी हो ना, जो तुसी कह रहे हो मैं साडी गल कर, हर मदई सर पैसे लेके सुलह करदा है। सर तुसी कह देता ना हो सकदा है, ते भाई मैं कहना नहीं हो सकदा, जो तुसी कह रहे हो ठीक है। सर तुसी पहले गल कीती है कि डाकू तुसी चलान करदे हो ते मदई आके लिख के दे दिंदा है। मैं कह रहा कि मदई क्यों इतना खौफजदा हुंदा ओदे कोल? सर किथे लिखिया ओदे मत किथे ए किने मैं कह के खौफजदा हुंदा नहीं है तो तुसी तो कह रहे हो कि आके कर जांदा है, क्यों केस क्यों नहीं ओदे डाकू? आपने अभी इस माशरे में सर डाकू क्यों ज्यादा सिक्योर है? मुआशरा सुन तो ले, मुआशरा इसलिए सिक्योर है कि तुसी उन्हां दी जमानत करान टुर जांदे हो। सर किने कराई? मैं तो किसी दी नहीं कराई। मैं तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਦਰ ਸਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। अच्छा ठीक है ना, या मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पर्चा दर्ज हो गया। जो तू दरखास्त देन गया उदों मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं सी, जो तेनों बुलाया पर्चा देने तो पहले उदों मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं सी, जो FIR दर्ज हुई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं सी, 10 दफ़ा तू दरखास्तां दित्तियां मिसअंडरस्टैंडिंग, जो फड़िया गया तू रिकवरी लै लई
उस तो बाद मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है तेरी। अच्छा सर, ये इस तो बाद सवाल तो ले मैं इसी को जरा 100-150 मदईयां को ठीक तो नहीं पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ इतनी ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਮ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ गिरफ्तार किया चुकया मैं सर सीआईए ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਡਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਡਾਕੂ ਰਾਤ ਘਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਦਿਨੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। अच्छा सर एक और चीज़ ये बताएं कि सीआईए जब किसी को गिरफ्तार करती है तो सीआईए के अपने थाने में मतलब हमने वो पता करना है, एक बंदा आ गया उसको कोई ले गया, गिरफ्तार करके ले गया, गाड़ी में बिठाया, अब वो होता है जी सीआईए ले गई, कोई और गिरफ्तार करके ले गया, या कोई उसका दुश्मनी किसी आया और उसको ले गया, इब्राहिम वहाँ पाया जाता है, तो उसके कहाँ से पता लगेगा कि बंदा कहाँ पे है? मेरे से डायरेक्ट तारे को नहीं पता लगे? मेरे को मैं दस देंगा कि साढ़े को हर बंदे दी तक रसाई भी नहीं सर, हर बंदे दी रसाई, मेरा दरवाजा खुला तो रोकिया किसी ने? गल है कि हमारे तरीकाकार ये है कि जब हमको बंदा पकड़ते हैं हम उसके वर्षा को बताते हैं आपको बंदा हमने पकड़ लिया, ठीक, उसका राइट है। अगर उसके वर्षा को नहीं बताया गया तो सीआईए ने इसका मतलब है नहीं बंदा पकड़ा, ठीक हो। आजकल देखिए ना, मेरी और एक और बात है, इतनी सारी एजेंसियां काम कर रही होती हैं, कोई भी बंदा जाके आपको कहे हमने सीआईए से आए बंदा पकड़ के ले गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं उसका जिम्मेदार हूँ जिसको मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना, और उसकी हेल्थ का, उसके राइट्स का आई एम रिस्पॉन्सिबल, वी टेक केयर ऑफ देम। अच्छा सर एक और बताइएगा, आपके पास जब गिरफ्तार किया जाता है, आप बंदे को ले आते हैं, रिकवरी हो जाती है, मुद्दई को पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद का आगे क्या प्रोसेस? उस मुलज़म को सजा भी दिलवाई जाती है या उसको? सर हम चालान करते हैं, चालान करके अदालत में भेजते हैं, उसके बाद उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। ठीक, जो एक डायलेमा है ना सीआईए का एक्चुअली, क्योंकि मैंने जो आपसे पहले बात की ना कि हम जब पुलिस वाले का इंटरव्यू करने आते हैं तो हम इस नेगेटिविटी के साथ आते हैं कि हमने इनको पकड़ना है, हम ये नहीं सोचते कि व्हाट पॉजिटिव रोल दे आर प्लेइंग। मसलन एक बंदा पूरे जोर शोर से मुकदमा तरले डाल के ना वहाँ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में तो सीआईए में ट्रांसफ़र करवाता है, जब ट्रांसफ़र हो जाता है उसको बिल्कुल होप नहीं होती कि जब डेड हो जाता है वहाँ तो हमारे पास आता है, जब चोरी डकैती उसकी हुई होती है, जब हम उसका केस ले लेते हैं तो वो शुरू में तो होता है कि सर कुछ करें कुछ करें कुछ करें, अचानक वो जो मासूम मुद्दई से जालिम बनने का उसका पीरियड है ना, कभी आप वो देखें ना तो वो कमाल होता है। जिस दिन हमने बंदा पकड़ लिया और उसने कन्फेस कर लिया मैंने ये वारदात की है, तो उस दिन फिर मुद्दई साहब की टांग ऊपर आ जाती है, फिर मुद्दई साहब कहना शुरू करते हैं लो मेरा तो 7 करोड़ गया सी, मेरे को तो गलती हो गई, मैं 2 लिखिया सी, ऐ झूठ बोलन डे जी, मेरा तो यह भी गया सी, मेरा तो यह भी गया सी, ਇਹਦਾ मोटरसाइकिल भी बेचो, ਇਹਦਾ घर भी बेचो, ਇਹਦੀ कार भी बेचो, ਇਹਦਾ फ्रिज भी बेचो, तो सारा कुछ मैनू दो। वो मुलजम जो मर्जी करे, असी जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर लिए, वो स्टिल कहेगा जनाब मेरा तो करोड़ गया सी, तुसी मैनू सिर्फ 20 लाख रुपया दिता है जनाब, मैं बड़ी ज्यादती कर दी मेरे नाल सीआईए। अच्छा सर मैं आपको अपना दुख बताने लगा जी सर कि एक टाइम था जो टोटल मायूस था कि मेरा केस कख नहीं बना, खत्म हो गया। सीआईए ने सारी पूरी एफर्ट की, अंगू से बंदा पकड़ के लाए, मालाकंड से लाए, जहां से भी लाए, ला के उसके सामने बैठा दिया। जब सामने बैठाया तो उसने कहा जी ना 25 तोले जेवर लिखा है, उतो टोटल 5 तोले मिले, पहली लड़ाई उतो शुरू हो गई, नहीं जी मैनू तो हुण 25 चाहिए, ठीक है। हुण वो जो 25 है ना वो ख्याल होंदा है कि सीआईए एसपी सीआईए चैक लिख देगा तो 20 तोले तो जेब च दे देगा सानू। हम जालिम लोग हैं, एक तरफ हम टोटल फारग होकर बैठे होते हैं और दूसरी तरफ जब हम उनको देना चाहते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि अगले का गुर्दा बेच के भी असी उन्हें पैसे दे देंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इंसानियत वाला जो है ना वो हमें साथ रखना चाहिए और एफर्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए, विच वी डोंट डू इट। थैंक यू।